Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Arun Jaitley National Institute of Financial Management, an autonomous institution under the Ministry of Finance, is seeking applications for one post of junior translator on a deputation basis in pay level 6. The appointment is initially for 1 year. Candidate fulfilling the eligibility criteria must submit their applications within 1 month of the advertisement's publication. Detailed instructions and the application format is available at www.ajnifm.ac.in. National Financial Reporting Authority invites applications on deputation or short-term contract basis for various senior and support positions in New Delhi. The vacancies include Executive Director, Chief General Manager, Assistant General Manager, Manager and Assistant Manager. Additionally, there are multiple openings for personnel, general assistants, grade 1, 2 and 3, senior private secretaries and drivers. Eligible officers from civil services, RBI, PSUs and other government bodies may apply through the proper channel within 60 days of the advertisement's publication. Detailed formats available at www.nfra.gov.in. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways is recruiting for 2 posts of Shipping Master and Director via transfer or deputation. These are in level 11 positions and may be posted in Mumbai, Kolkata or Chennai. Applicants have 60 days from the date of publication in the Employment News to submit their forms. Further details regarding eligibility and terms available at http://www.dgshipping.gov.in. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways invites applications to fill up a post of a stenographer grade 1 level 6 on a 3-year deputation basis in the Andaman Lakshadweep Harbour Works. Postings will be in the Andaman and Nicobar or Lakshadweep Islands and include prerequisites like dedicated accommodation and transport. Eligible candidates must apply through the proper channel with a 5-year APA dossier and vigilance clearance within 60 days of the advertisement's publication. Further details and performers can be found at http://andsw1.and.nic.in. CSIR Central Leather Research Institute, Chennai, has announced online applications for various administrative positions. The vacancies include 1 junior stenographer level 4, 6 junior secretariat assistants across general, S&P and F&A departments level 2 and 6 multitasking staff MTS positions in level 1. The online application portal will remain open till 22nd February 2026. Interested candidates can find the detailed eligibility criteria and instructions at https://www.clir.org. And now we have the employment news in Hindi. रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता और आइए सुनते हैं कहां निकली रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड नई दिल्ली NCRTC कुछ रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक प्रबंधक मानव संसाधन। वेतनमान होगा 50,000 से 1,60,000 रुपए के मध्य। कुल 3 पद रिक्त हैं जो कि सामान्य श्रेणी के लिए है और इन सभी पदों के लिए आयु सीमा है 40 वर्ष। योग्यता रहेगी MBA, स्नातकोत्तर डिग्री, प्रबंधन में डिप्लोमा या इसके समकक्ष। योग्यता के पश्चात 5 वर्षों का अनुभव वांछनीय है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि NCRTC वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत रिक्ति सूचना के अनुसार होगी। NCRTC की वेबसाइट पर जाकर
विस्तृत विज्ञापन देख लें। वेबसाइट है www.ncrtc.in के करियर अनुभाग में आपको वहां पे विस्तृत विज्ञापन प्राप्त होगा। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त गुजरात का कार्यालय। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त गुजरात अहमदाबाद द्वारा विभिन्न खेलों क्रीड़ाओं में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है टैक्स असिस्टेंट। कुल 18 पद रिक्त हैं। वेतन स्तर 4 पर। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कुल 28 पद हैं और इसके लिए वेतन स्तर 1 होगा। शैक्षणिक योग्यता, अन्य पात्रता शर्तें, नियम एवं शर्तें तथा अभ्यर्थियों के लिए निर्देश आपको विभाग की वेबसाइट www.incometaxgujarat.gov.in पर प्राप्त हो जाएगा। पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.incometaxgujarat.gov.in के जरिए प्रस्तुत कर सकते हैं। भौतिक रूप से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अतः आपको ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 फरवरी 2026। मानव विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा वित्त पोषित परियोजना सामान्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए देखभाल की निरंतर श्रृंखला को सुदृढ़ एवं विकसित करने हेतु एक हस्तक्षेपात्मक अध्ययन के अंतर्गत कुछ रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है परियोजना वैज्ञानिक 1, गैर चिकित्सीय पद है, जिसके लिए 72,800 रुपये प्रति माह मानदेय होगा। शैक्षणिक योग्यता चाहिए होगी मानव विज्ञान संबद्ध विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी के साथ MSc, जिसमें एकीकृत स्नातकोत्तर डिग्री भी सम्मिलित है। दूसरा पद है परियोजना तकनीकी सपोर्ट 3, एक पद रिक्त है जिसके लिए मानदेय रहेगा 36,400 रुपये। शैक्षणिक योग्यता रहेगी मानव विज्ञान संबद्ध विज्ञान में स्नातक के साथ 3 वर्ष का अनुभव। तीसरा पद है परियोजना तकनीकी सपोर्ट 1, कुल 2 पद रिक्त हैं जिसके लिए मानदेय रहेगा 23,400 रुपये प्रति माह। शैक्षणिक योग्यता रहेगी मानव विज्ञान संबद्ध विज्ञान में स्नातक। वांछनीय योग्यता रहेगी क्षेत्रीय कार्य का अनुभव एवं रिपोर्ट लेखन का अनुभव। ये सभी पद अस्थायी आधार पर 1 वर्ष के लिए हैं, जिन्हें संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के आधार पर 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा और समर्थन दस्तावेज इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 14 दिनों के भीतर ईमेल अथवा डाक द्वारा डॉक्टर सुनीति यादव, प्रधान अन्वेषक मानव विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007 के पास भेज सकते हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM आयुष मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत कुछ रिक्त पदों के लिए अनुबंध आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक। 1 पद रिक्त है जिसके लिए समेकित पारिश्रमिक रहेगा 1 लाख रुपये। क्षेत्र विशेषज्ञ सार्वजनिक स्वास्थ्य 8 पद रिक्त हैं जिसके लिए समेकित पारिश्रमिक रहेगा 75,000 रुपये। वरिष्ठ परामर्शदाता के लिए 65,000 रुपये पारिश्रमिक रहेगा और कुल 2 पद रिक्त हैं। कनिष्ठ परामर्शदाता के लिए 4 पद रिक्त हैं, 60,000 रुपये पारिश्रमिक होगा। वित्त प्रबंधक के लिए 1 पद रिक्त है, 60,000 रुपये पारिश्रमिक पर। लेखा प्रबंधक के लिए 1 पद रिक्त है और पारिश्रमिक रहेगा 50,000 रुपये। डेटा सहायक के लिए 3 पद रिक्त हैं और पारिश्रमिक होगा 35,000 रुपये। पदों से संबंधित विस्तृत कार्य विवरण तथा निर्देश के लिए आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट ayush.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ डाक द्वारा अथवा ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है nampmu-ayush@gov.in और डाक द्वारा भेजने के लिए पता है उपनिदेशक राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, कक्ष संख्या 402B, आयुष भवन, B ब्लॉक, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली 110023। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 1 माह। श्रोताओं, रिक्ति से संबंधित कोई भी संशय हो तो आप संबंधित संस्थान की वेबसाइट को विजिट कर उसे दूर कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी शुभकामनाएं। This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.